your positive attitude. I just want to make a small story to you. There was a person who was walking on the street and he saw a couple of people making stones. He asked them, "What are you doing?" And they replied back that just doing in order to earn money so that we can fill our belly by building these stones. And it's a backbreaking work and we have to do it because we want to kill. He moved on and there was another group of people who were also making stones. And he asked them, "What are you doing?" And they replied that we are trying to make these stones so that we can build a temple wherein the gods will be residing. He was very much happy and told them, "But it's a backbreaking work. Why are you doing it?" I know, but imagine what will happen tomorrow when these fine chiseled stones will house that beautiful statue, or that beautiful temple will be created. He was very happy and he went ahead. Then he came across another bunch of people who were also converting stones into statues. So he asked them, "What are you doing?" They replied back that we are trying to carve out life into what is material, what is practical. And that's what we are trying to do. We are trying to give life to something which is in the world. So the moral of the story is that everybody is doing the same kind of work, similar kind of this thing, but the way your attitude is will define how passionate, how committed, and how well you are doing that particular. So believe me, it's not the environment, it's not anything else, but your attitude which will determine how successful you will be, what you will do with your time, and what you will do with knowledge that you get. I wish you a wonderful time in your college. I wish that you work together with your teachers, respect them, respect their knowledge, but also demand that you are given the best knowledge possible within the circumstance. Today, knowledge is not only restricted in books. You must read on the internet. That will be told to you on the validation group. Grade and whatnot. So attendance, and remember, if the attendance goes beyond a certain limit, goes below a certain limit, you will not be allowed to appear in the university examinations. We are very serious about it, and as the years progress, we are getting more serious. So take it seriously that attendance is compulsory, and attendance must be much above the stipulated limit of 75%. As I said, the result analysis is very explicit, clarifying that once the attendance is over a certain limit, all the students do well and get promoted, and that's why you are here for. The next point is about uniform. You must get your uniform stitched within 1 week's time from today. Can you hear me properly? And are you listening properly? We will not allow you to attend the classes after 1 week if you are not in your uniform. So get all details of the different colors and textures and whatever for different courses has been designed. Get your clothes stitched sooner than later, so that after a week you all come in your uniform. I hope I have driven home the point and the seriousness of it. Discipline is another area which is very, very important. Students are supposed to be disciplined. Why you should not be disciplined? Discipline is a behavioral aspect of our civilized society which has got to be followed in letter and spirit by each one of you.
And if you are not disciplined, we'll make sure that the necessary steps are taken to ensure that you are no more indisciplined. So do not give us a chance to take any action against you because of indiscipline. Behave well, follow the rules of the society, and also whatever is, whatever is told by the institutes, the faculty members, directors, and others. The next point that I would like to draw attention to is English. This is where we have to be very serious. When we joined the engineering courses, the first lesson we learned of drawing is that drawing is the language of engineers. Drawing parallel to that, we can say English is the language of professionals. This is an institute of higher learning. All of you will become professionals and very, very important citizens of India over a period of time. So, unless you can communicate in English, well, the growth will get halted at different stages, and the prosperity and the aspirations and the ambitions of yours will not get fulfilled. Hence, really, you have to learn English. There is no other way. You have got to be very careful, and it is nothing impossible. You know, there are many people, including myself, who have never been to the convent or the English education system before passing the higher secondary or inter-college, whatever you call it. But afterwards, if you have the ambition, if you have the intentions, definitely you can learn anything. Nothing is impossible. And please, again, why I have been so much on this aspect? Because if you are not knowing English, you will not be able to compete with the students of other institutions. And now this is a global arena in the global world where we get students and the competitors from different countries and different parts of the world who are well versed in English. So please do not neglect the studies of English and try to put in your best efforts to learn English as early as you can. From tomorrow, for the BTech students, please share your problem with your mentor. He is there as your local guardian, rather better than the local guardian, because he is easily available to you. You will give the telephone number of the mentor and you can contact him any time, as and when you require. Thirdly, as Sir has already mentioned regarding the discipline, until unless a person is disciplined, he cannot be a good person. So that you will have to take care of it. In maximum effort to get the good marks in the exam, not taking much of the time, because most of the points have already been covered by our director sir, and some of the points will be covered by Madam Dr. Maya Dixit. So thank you very much for patience, listening, and thank you. Today is the start of a new adventure, new challenges to face, new memories to make, and a new opportunity to overcome. I have been asked to introduce you all with the rules and regulations of Justice Group of Institutions. Not taking too much time, first of all, I will begin with the code of conduct regarding uniform. As Kalyanji has advised you to get your uniform ready within a week's time. So I will also give you same instruction. You are supposed to get your dress ready and be in the proper dress of Justice Group of Institutions. Dress is provided for HMCD department as well as BTech, MBA and BSc Biotech
appeared in the university examination, students are requested to submit leave applications with valid reasons for absence from the classes. Please note it down. जाने से पहले application लेके जाइएगा. Leave application shall be submitted to the concerned. कुछ छूट नहीं चलेगा। मनीषा कहती है कि मेरे अंदर कुछ डिटर्मिनेशन जैसी चीज थोड़ी कम है, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि मैं जीनियस नहीं हूँ। थैंक यू। आप बताइए, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आप जीनियस नहीं हैं? हाँ जी, बताना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आज 5 बजे से पहले आप बदल जाओ सारे, तो प्लीज कॉपरेट करो। मुझको लगता है ये हेजिटेशन नाम की जो चीज है ना, ये मुझे जीनियस बनने से रोकती है। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप जीनियस नहीं हैं? आप आगे बढ़िए, ऐसे ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने में दिक्कत आती है तो मुझे वो जीनियस बनने से रोकता है। योर नेम? आप बेटा बताओ, क्यों सोचते हो कि आप जीनियस नहीं हो? मुंह के पास माइक ले जाके मेरी तरह। हाँ। ओके, आपको ऐसा लगता है कि भूलने वाली समस्या ये मुझे जीनियस बनने से रोकती है? ओके, सिट डाउन प्लीज। आप बताओ, आपको ऐसा क्यों लगा आप जीनियस नहीं हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। आपको भी लगता है? आपको, आप में से जितने बच्चे हैं, एक बात पूछूं मैं आपसे, 10th के पेपर सबने दिए होंगे? ओके, सबसे कम नंबर 10th में इंग्लिश में किसके थे? जल्दी से बताओ, डू नॉट वेस्ट टाइम। सबसे कम आप अपने बता दो। तो मुझे लग रहा है इस कॉलेज में सबसे कम मेरे थे। कोई प्लीज बताएगा जी, कितने बच्चे नंबर थे? 42 से कम वाला 40, 38 इससे कम है, 33 से कम वाला। ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है, इसके 10th में इंग्लिश में 3 नंबर थे और इसने लगभग 70,000 बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दिया। समझ गया? तो जो बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो आपने कहा इंग्लिश बोलने से मुझे डर लगता है, इसलिए वो जीनियस बनने में रुकावट। आप क्यों समझते हैं कि आप जीनियस नहीं हैं? ठीक बोलो थोड़ा। हाँ, ओके। आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम बोलने की है, जिसकी वजह से मैं जीनियस नहीं हूँ। आगे वाले प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। आप बताओ बेटा, आप जीनियस क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं है आपकी जान बची तो लाखों पाए, ध्यान रखना। ओके, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसकी वजह से लगता है मैं जीनियस नहीं हूँ। यू हैंडसम बॉय। हाँ जी, हेजिटेशन है आपको? ऑलराइट, बैठो। आपको क्यों लगता है आप जीनियस नहीं है? एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बता नहीं पाता। हाँ बेटा, बोलने में डर लगता है आपको। काम करने से थोड़ा डर लगता है, स्टार्टिंग नहीं कर पाता मैं। ओके, सिट डाउन। लास्ट बॉय, जोर से बोलो। चलो, एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम है, मन की बातों को नहीं बता पाता। ठीक है, आप बताइए, ऐसा क्यों मानते हैं कि आप जीनियस नहीं हैं? ओके, मुझे ऐसा लगता है मैं चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं जीनियस नहीं हूँ। आप बताओ बेटा, जोर से बोलो। आप पीछे वाले सब बैठ जाओ। ओके, सिट डाउन एवरीबॉडी। तो 2 बच्चों ने हिम्मत करके हमें बताया कि वो जीनियस हैं और बाकी सब ऐसा मानते हैं कि कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी समस्या है जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो जीनियस नहीं है। तो इसका मतलब ये है, मेरे दिमाग में जीनियस को लेकर कुछ अलग ही चीजें बनी हुई है। कोई ऐसी चीज है जो मैंने पढ़ी है कि जीनियस कुछ अजीब सा होता है। तो आज हम पहले इसको स्टडी करते हैं कि जीनियस क्या चीज है। आप सबके पास जेब में एक चीज होगी जरूर, जरा प्लीज निकालो। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो देखना है, प्लीज हाथ में ले लो जिसके पास है। Everybody, right? Okay, either boy or girl. इसको क्या बोलते हैं?
हाँ जी, सबने ले लिया? अच्छा मुझे प्लीज बताइए कि क्या सोचकर इसको किसी ने मैन्युफैक्चर, इन्वेंट, डिस्कवर किया होगा? पहली बार किसी ने कुछ सोचा होगा? ऐसा क्या सोचा कि ये डिस्कवर हुआ? कहना ये चाहता हूँ, आप मुझे सब बताओ, प्लीज हेल्प मी, कि ये किस किस काम में आ सकता है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या क्या हो सकता है? आप बताओ ये किस काम होता है? मुंह पहुंचने के एक काम बता दिए इन्होंने, हाथ खड़ा करते रहो, मैं आपके पास आता रहूंगा। हाँ जी, अब रिपीट नहीं करेंगे, मुंह पहुंचना हो गया। चेहरा ढकने के काम आ सकता है, थैंक यू प्लीज, ये तो छोटी सी बात है। हाँ, चोट लग जाए तो इमीडिएट बांध सकते हैं इसको, टेम्परेरी बैंडेज का। हाथ साफ कर सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। कलाई में बांध लेते हैं, थोड़ा स्टाइल लगता है, मजा आ जाता है कॉलेज में। फिर इसको रख सकते हैं जेब में कोई और काम के लिए। सोचो सोचो कि इसके और क्या क्या काम होते हैं। गुरुद्वारे में जाऊंगा तो सिर पे रख के ले जा सकता हूँ ना, मंदिर में। और सोचो, ऐसे ही बहुत सारी बातें कुछ फनी हो सकती हैं, कुछ लगेगा कि बड़ी मजाकिया है, बट बोलो प्लीज। नाक पोछने की, भगवान ने नाक बनाई और इंसान ने रुमाल, दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। गुड रिप्लाई, थैंक यू। और प्लीज बताइए, पसीना पोछने के काम आता है। सिर में दर्द हो रहा हो तो सिर में बांध लो, थोड़ा हीरोगिरी हो जाती है। और सोचो, हाँ? अगर कहीं कुछ लग जाए, गंदगी टाइप की कोई डस्ट लग जाए तो क्लीन कर सकता हूँ। सगाई होती है तो वो जितने गोला वो मिलता है रुपए, वो भी रुमाल में रख के जाता हूँ, मम्मी को देता हूँ। और क्या क्या हो सकता है? आप में से प्लीज सोचो, रुमाल के क्या क्या काम आते हैं? आप बताओ बेटा, कभी जिंदगी में कोई और दूसरा काम किया हो? हाथ साफ कर सकते हैं, प्लीज। आंख में चला जाए कुछ। और चलिए, आपने मुझे बहुत सारे जवाब दिए, ऑलमोस्ट सारे ठीक थे। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? छोटी सी चीज हमने वैसे ही निकाल ली, रुमाल टाइप की, और हमने उस पर चर्चा करनी शुरू कर दी और सबने रिस्पॉन्ड किया। एवरीबॉडी कोऑपरेटेड, हेल्प मी। तो ये आइडियाज आ किधर से रहे हैं? यानी कि मनुष्य जो होता है वो सोचता है कि नहीं? तो ये जो सोचने वाला काम करता है, ये जीनियस करता है। जीनियस जो होता है वो सोचता है, उसकी कुछ डिजायर्स होती हैं, उसकी कुछ विश होती हैं। अब ये जो वर्ड है, ए विश, तो मैं आपको बताऊंगा जीनियस जब आप होते हो तो आप क्या क्या काम करते हो, तो अपने आप से कंपेयर करते रहना। सबसे पहले हम ए लेटर को लेते हैं। ए का मतलब होता है आस्क। जीनियस हमेशा प्रश्न करता है, ये उसकी पहली पहचान है। प्रश्न करेगा, पूछेगा वो, तो वो सबसे पहले तो खुद से प्रश्न करता है और फिर उसके बाद वो दूसरों से भी करता है। खुद से मतलब जैसे न्यूटन बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, प्रश्न कर रहा है कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं हो गया। अब अपने माइंड से करेगा तो जवाब एक दिन बाद नहीं तो एक साल बाद मिलेंगे। जब जवाब मिलेंगे तो उसको हमेशा उस पर काम करता है, तो he gets the answer। तो जीनियस की पहली पहचान, वो प्रश्न जरूर करेगा, ये ऐसा क्यों है। एक गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो अगर मुझे हेजिटेशन है और अगर मैं हेजिटेशन के साथ ही जीऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर मैं लैंग्वेज नहीं बोल सकता, मुझे इंग्लिश में समस्या है, तो मुझे प्रश्न तो करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो मुझे खुद से पूछना पड़ेगा कि तेरे अंदर ऐसा क्या है कि तू अपना एक कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं है। तो आई विल हैव टू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ। जब आप एक दिन के बाद नहीं, जब मेरे इंग्लिश में 3 नंबर थे तो मैंने यही काम किया। 7-8 दिन में मुझे जवाब मिलने लग गया कि मैं इंग्लिश में ऊपर क्यों था, मेरे 3 नंबर क्यों आए। कुछ सवालों के जवाब हमारे टीचर्स देते हैं, गुरु देते हैं, माता पिता देते हैं। तो क्या आप सवाल करते हैं खुद से या दूसरों से? हाँ या ना? तो इसका मतलब आप जीनियस हैं। जीनियस का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसके मतलब 100 में से 100 आएंगे तभी वो जीनियस है। नहीं तो मैं क्या कर रहा होता, मेरे पापा मजदूर थे, मैं भी मजदूरी कर रहा होता। जीनियस की दूसरी पहचान क्या होती है? अब हम विश का एच लेते हैं।
वो एक ह्यूमन बीइंग होता है। Would you please tell me the difference between human being and other creatures? एक इंसान में और जीव जंतुओं में क्या फर्क है? क्या फर्क है? एक इंसान और बाकी के पूरी पृथ्वी पर जीव जंतु, मछली, कुत्ता, घोड़ा, मच्छर, बिल्ली, ये सब है। इन दोनों में क्या फर्क है? आपके हिसाब से कोई एक फर्क बताइए। ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट, मतलब उसका सम्मान होता है। और बताइए, चलिए। इंसान सोचता है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और वो जानवर पता नहीं सोचते हैं कि नहीं, ये प्रूव नहीं हुआ। एनालिसिस कर सकता है। ब्यूटीफुल रिप्लाई। सिविलाइज्ड होता है ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स अगर वो सिविलाइज्ड भी होते हैं तो वो एक खास पैटर्न की वजह से होते हैं। अगर ग्रुप में भी रहते हैं तो सुरक्षा की भावना से। आप सोचो, सिविलाइज्ड इंसान जो होता है समूह में रहता है, सामाजिक होता है, राइट। सेल्फिश, ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हो सकता है, ये पता नहीं क्वालिटी है, डिसक्वालिटी। और इंसान जो जानवर होते हैं वैसे नहीं होते। प्लीज सोचो बताओ। जानवर थिंकिंग हो चुका, बता दिया मुझे, हर काम कर सकता है। देखो पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। अगर आप डमी की तरह बैठोगे तो फिर कैसे समझोगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। कि आपके कॉलेज में ये पहला साल है, मैं चाहता हूँ इस कॉलेज से जब आप निकले तो आपके फोटोज अखबारों में होने चाहिए, आपका बड़ा नाम होना चाहिए। 10 साल बाद भी आप कॉलेज में आए तो कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए कि ये एक ऐसा स्टूडेंट था। तो उसके लिए केवल पार्टिसिपेट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। क्या और क्वालिटी होती है जानवर और इंसानों में? क्या फर्क होता है? ओके, वो उसके अंदर दया वाली भावना होती है, जानवरों में ये सब नहीं होता। जानवर कभी दया नहीं करते। अभी देखो, मैं इंसान हूँ, मुझे भूख लग रही है, आपको भी भूख लग रही है, आप भी खड़े हुए हैं, तो मुझे भूख लगती होगी, क्या मैं अपनी आधी रोटी आपको नहीं दे सकता? आई कैन शेयर। परंतु जानवरों में नहीं होता कि कुत्ते को भूख लग रही है तो वो पड़ोसी कुत्ते को आधी रोटी छोड़ दे। और फादर लॉइन होता है, अगर वो शिकार करके लाएगा तो वो सबसे बड़ा हिस्सा पहले खाएगा, फिर बच्चों को मिलेगा, शेरनी को मिलेगा। बट वो ऐसा नहीं करता कि पड़ोसी का शेर भूखा है, उसका नेबर आज उसने अंट नहीं किया तो चलो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। हम लोग शेयर कर सकते हैं। और क्या होता है? उसके अंदर ऑनेस्टी हो सकती है, कर्टसी हो सकती है, उसके अंदर इंटीग्रिटी, सच बोलने की आदत हो सकती है, वो एक देशभक्त हो सकता है, उसके अंदर करुणा हो सकती है, कंपैशन जिसको बोलते हैं। ये सब क्वालिटी होती है कि नहीं होती? इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। उसके अंदर एथिक्स होती हैं, उसकी वैल्यूज होती हैं, उसके कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जो जीनियस होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। इंसान के रूप में उसमें 2-4 गुण जरूर होते हैं। जीनियस का अगला एस, सॉल्यूशंस। जीनियस हमेशा सॉल्यूशंस पे काम करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो हो गई, तो अब वो सोचेगा कि इसका समाधान क्या करूं। जब आप सुबह सुबह आँख खोलते हो ना तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स मिलती है लाइन में क्यों लगाकर। अगर आप उनको सोचते रहोगे तो समस्या का समाधान कब मिलेगा? दिस इज द प्रॉब्लम, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बट व्हाट इज द सॉल्यूशन। क्या कोई मतलब ब्रिटेन से चल के मुझे लैंग्वेज पढ़ाने आएगा या मुझे कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी? अगर करनी पड़ेगी तो किस तरह की होगी? मेरे अंदर ये कमियां हैं, बुराइयां हैं, बैड हैबिट्स हैं, वीकनेस हैं, तो इनका समाधान क्या होना चाहिए? जीनियस प्रश्न करेगा, सॉल्यूशंस पे काम करेगा, और उसको जब सॉल्यूशन पे काम करता है तो आंसर्स मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं ऑलवेज। तो क्या कितने ऐसे बच्चे हैं जब उनको प्रॉब्लम आती है तो वो फटाफट सॉल्यूशंस पे ध्यान देने लग जाते हैं? 2, 4, 5, 6 प्लीज, अब तो आप उनसे करियर हो गए। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। यानी कि अगर मेरे एक हाथ में समाधान है और दूसरे में प्रॉब्लम है तो मेरा माइंड जिस पे टारगेट होगा वो चीज बड़ी होने लग जाएगी। अगर मैं प्रॉब्लम को बहुत दिनों तक सोचता रहूंगा तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है हर उस चीज के लिए जिस पर आपका ध्यान होता है। जीनियस अगला काम क्या करता है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? व्हाट इज इम्पैक्ट? कोई मुझे हेल्प करेगा प्लीज? एक तरह का प्रभाव मान लीजिए। देखो, इस इम्पैक्ट में एक लास्ट वर्ड है ACT, एक्ट करना, कार्य करना। और एक और वर्ड होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, और एक और वर्ड होता है इम्पैक्ट देना।
ह्यूमन बीइंग जीनियस जो होता है वो एक्ट करेगा, वो काम करेगा, वो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता, वो इम्पैक्ट देने के लिए प्रयास करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। अभी 10-12 दिन हो गए, एक लड़की आई थी, वो बहुत ज्यादा उसका मतलब रंग काला था, जरूरत से ज्यादा आप मान लो ऐसा। वो उसको लेकर बहुत डिप्रेशन में थी कि सर मैं इतनी काली हूँ, अब मेरी छोटी बहन की शादी हो गई, मेरी नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं किधर भी जाती हूँ तो मैं इस कलर को लेके परेशान रहती हूँ। आप मुझे बताएंगे मदर टेरेसा की हाइट क्या थी? 4 फीट 10 इंच, और वो ऐसे ऐसे करके नहीं चलती थी, वो भी झुक के चलती थी। कौन मुझे बताएगा कि महात्मा गांधी का वेट क्या था? क्या वो खली की तरह ताकतवर थे? कुछ नहीं। अगर आप अपने शरीर पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो इसका मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में हो, और अगर अट्रैक्ट करोगे तो इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अगर आप इम्पैक्ट पे काम करेंगे तो फिर आप प्रभाव देना कोशिश करना शुरू कर दोगे। तो ये जो इम्पैक्ट वाली चीज होती है, जीनियस के अंदर बहुत होती है, वो अपने कार्यों के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है, ना कि अपनी स्टाइल मार कर। तो जैसा भी भगवान ने बनाया है ठीक है, वो ऊंचा है, छोटा है, लंबा है, काला है, पतला है, ढीला है, वो कैसा भी हो सकता है। मैं आपको 5 मिनट में एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा। मेरे ट्रेनर थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था, तो उन्होंने कहा था, हरीश जब मैं खुद ट्रेनिंग लेता था तो हम एक जगह पर ट्रेनिंग लेने जाते थे ऑफिस के बाद, और वहाँ हमारी क्लास चलती थी 6 से 9, 3 घंटे की। तो हम बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते थे, जिसमें से हमारा साथ का एक अच्छा ग्रुप बन गया था। उन्होंने मुझे ये घटना 1999 में सुनाई। तो उन्होंने कहा कि उस ट्रेनिंग के दौरान हमें एक लड़का मिला जिसका नाम था योगेश। योगेश बिल्कुल सफेद, जो बीमारी होती है ना सूरजमुखी वाली, जिसमें चांदी जैसे सफेद बाल हो जाते हैं, पलकें भी वाइट हो जाती हैं, बिल्कुल भूरा हो जाता है इंसान, दिन में नहीं देख सकता, सूरजमुखी टाइप की ग्लोकोडर्मा। तो पहले वो उस बीमारी से ग्रसित था, वो पढ़ने आता था। अब वो पढ़ने आता था तो उसकी आंखों पे इतना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ था कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बेस होता है कांच की बोतल का, इतना मोटा, और वो बिल्कुल पास से लेकर कागज देखता था, फिर भी पता नहीं क्या करता था। आगे बैठता था, सबसे किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप। और जब ब्रेक होता था 1 घंटे के बाद, तो वो वही टिफिन में से निकाल के कुछ खा लेता था, और हम सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, सब के सब। और हमने उसका नाम रखा हुआ था सोडा वाटर की बोतल। हम उससे कुछ बोलते थे तो वो जवाब देता था, और नहीं बोलते थे तो वो चुप बैठा रहता था, बट वो बात करता था, बट अपनी तरफ से कोशिश नहीं, और वो वहीं बैठा रहता था उस चेयर पर। 25 दिन की क्लास के बाद जब हम रात को 9 बजे बाहर निकले, तो वो अंदर से बाहर आया, क्लास से वो सबसे लेट जाता था, और वो आकर हमारे पास खड़ा हो गया, दरवाजे पर टेक लगाकर। हम लोग बाहर थे, तो मुझे मेरे ट्रेनर ने बताया कि हरीश, उसने हमसे 10 मिनट बात की, और 10 मिनट में उसने हमारी जिंदगी बदल दी। Within 10 minutes he transformed our life। और वो अगले दिन ही आया, उसके बाद आज तक उसका कभी पता नहीं है वो किधर गया, कैसे हुआ, जिंदा है, मर गया, क्या हुआ। और वो 10 मिनट ऐसे थे कि हम सब कांप गए और हम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो मैंने पूछा, सर क्या बताया उसने? तो उन्होंने कहा कि उसने हमें, योगेश ने कहा, जो अगले दिन और उस दिन की स्टोरी थी कि मैं ऐसा बचपन से नहीं हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद मुझे बीमारी होना शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर शरीर पे स्पॉट पड़ने लगे, फिर भूरा होने लगा मैं, और दिखना बंद हो गया। जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा, तब तक मेरे को केवल 10% दिखता था, और ये प्रॉब्लम मैंने अपनी फैमिली से शेयर नहीं की। उसके बाद जब मैं पेपर देने गया तो मुझको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, सारे अक्षर बिल्कुल धुंधले, बेकार, छोटे, और मैं पेपर खाली देकर आ गया और मैं फेल हो गया। योगेश ने बताया कि जब वो फेल हो गया और घर वालों को पता चला कि ये उसकी हालत है, तो उन्होंने कहा ये भगवान की मर्जी है, तुम क्या कर सकते हो बेटा, इसमें बेटर है पढ़ना सब छोड़ दो और घर में रहो, जो इलाज होगा ठीक है, नहीं तो नहीं। तो बोले मैंने ऐसा ही किया, और मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया जब मैं 9वीं में फेल हो गया। उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद योगेश को रात को इतनी जोर की ठंड लगी, उसको इतना पसीना आ रहा था, 1:30 रात के बज रहे होंगे उसने बताया, और वो पूरा पसीने में तरबतर।
तो योगेश ने कहा कि उस रात मुझे एक ऐसा सपना आया कि एक योगेश के दो योगेश हो गए सपने में, और एक योगेश बहुत कोने में छुप के डरा हुआ बैठा था और दूसरा बिल्कुल तन के उसके सामने खड़ा हुआ था। और वो जो तना हुआ था उसने योगेश को, जो डरा हुआ था, उसको लेक्चर देना शुरू किया सपने में कि अगर तेरी आज आंख खराबे हो गई हैं तो क्या अब इसके दम पर तू भीख मांगने की तैयारी कर रहा है? अगर तेरे अंदर ये चीज खराब है तो बाकी की तेरी चारों सेंस तो काम करती हैं। क्या हुआ जो तेरी आंखें कमजोर हैं? क्या हुआ जो तेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है? उठ खड़ा हो और कुछ करके दिखा। अगर तू नहीं कर सकता तो लोग केवल तुझसे यही करेंगे, बेचारा। तो योगेश ने कहा कि उस सपने को देखकर मैं बिल्कुल सिहर गया और अगले दिन आई डिसाइडेड कि मैं फाइट करूंगा लाइफ में। मैं डैड के पास गया, डैड से मैंने कहा कि पापा मुझे फिर से स्कूल लेके चलो। स्कूल में मैंने एक रिक्वेस्ट दी प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल साहब मुझे दिखता नहीं है तो मुझे कोई एक राइटर चाहिए जो मेरे एग्जाम्स को करे। परंतु जब प्रिंसिपल ने बोर्ड में रिक्वेस्ट भेजी तो बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया और योगेश फिर से असहाय हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ने एक सॉल्यूशंस दिया कि अगर ये रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को हमें दे एग्जाम के टाइम पे तो हम मार्किंग कर देंगे। तो योगेश ने कहा मैंने ऐसे ही किया, जो भी सवालों के आंसर होते थे मैं टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके वो सील होके जाता था। और इस तरह से योगी, ये घटना है पुणे की। और योगेश फिर से 9th क्लास में पूरे स्कूल में 10वीं रैंक आई। उसके बाद योगेश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर योगेश 12वीं में पूरे स्कूल में टॉपर हुआ। अब जब वो टॉपर हो गया उसको कुछ नहीं दिखता था, केवल उसको आउटलाइन दिखती थी लोगों की। जैसे रात में आपको एक पेड़ दिखता है और ये नहीं पता कैसा पेड़ है, पत्तियां वत्तियां कोई गलत है। और बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोगों ने पूछा योगेश अब क्या करेगा, तो उसने कहा मैं एमबीए करना चाहता हूँ। तो फिर योगेश ने कैट की तैयारी की, फिर उसको राइटर मिला। और आप ढूंढ लेना कहीं आपको योगेश की घटना मिल जाए। तो उस साल जितने भी कैट में रैंकिंग आई थी टॉप 10 में योगेश का नाम था और उसको 5 IIM से इन्विटेशन मिला। फाइनली योगेश का सिलेक्शन हुआ IIM अहमदाबाद। आपने नाम सुना है ना अहमदाबाद का? और योगेश ने वहां से MBA की। और MBA करने के बाद योगेश एक टेक्सटाइल कंपनी में जो महाराष्ट्र में उसमें काम करने लगा। और जिस वक्त वो मेरे ट्रेनर को ये घटना सुना रहा था उस वक्त योगेश की सैलरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ थी। तो योगेश कह रहा था मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कि 2 दिन के बाद मेरा ट्रांसफर बांग्लादेश होने वाला है और मैं बांग्लादेश का कंट्री हेड करने वाला हूँ जहाँ मेरी सैलरी होगी 12.5 लाख रुपए इन 1998। मुझे प्लीज ये बताइए कि क्या मैं वहाँ चला जाऊँ या इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है मैं क्या करूँ। वो इतना इंटेलिजेंट इंसान ही कह रहा था। आपसे इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि आपकी आँख खराब है, क्या आप सुनते नहीं हैं, क्या आप बोल नहीं पाते, क्या आपकी क्या समस्या क्या है आपके साथ, क्या आप इतना डरा हुआ महसूस करते हैं अपने आप। स्कूल के दिन गए, जो जीनियस होता है उसके पास इम्पैक्ट होता है। अगर आप इम्पैक्ट डालना सीख जाएंगे 2-3 साल के अंदर तो डेफिनेटली आप जीनियस हो जाएंगे। उसके बाद W, जीनियस कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। जीनियस वेट फॉर नन, कोई भी हो चाहे उसको वो जो काम होना चाहिए, जो किया जा सकता है वो उसको कर देगा। कॉलेज में जब आप आते हैं पढ़ने के लिए, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कल का कुछ लिखा हुआ है, हमें इसको साफ कर लेना चाहिए, तो जीनियस इंतजार नहीं करता, खड़ा होगा, टीचर की चेयर ठीक कर देगा, बोर्ड को क्लीन कर देगा, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेगा। अगर कहीं कचरा फैला हुआ है तो खुद उठा के उसको पानी में डाल देगा, अपने काम खुद करेगा। ये जीनियस की पहचान है। जीनियस कभी भी वेट नहीं करता कि लोग आएंगे करेंगे तब बैठेंगे तब होगा, नो नॉट एट ऑल। तो अगर आपके अंदर जीनियस के ये गुण हैं तो फिर कौन कहता है कि आप जीनियस नहीं है? अभी आप सोच रहे थे कि जीनियस पता नहीं क्या होता होगा कुछ, ये 5 चीजें। और अब अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीनियस डेली अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है, अवसर उसको मिलते हैं और उनको ढूंढ लेता है। अब इसको आप गौर से सुनो। देखो हम लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, रोज हर घंटे में, हर 5 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, आपको कुछ बताना चाहती है। अब आप उसको कैसे लेंगे, आपका माइंडसेट है या आपका एटीट्यूड है। तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? आप चाहो तो अपने कॉलेज में
टॉप पोजीशन ला सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, रिजल्ट आने के बाद नहीं होगी, आज है ये अपॉर्चुनिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज को फॉस्टर कर सकते हो आज से, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं, अब आप एक नए अंदाज से यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहो तो अभी से एक प्लान करके अपने करियर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि बेस्ट टैलेंट एक्वायर करो, ढूंढो कि मैं किस टैलेंट में माहिर हो सकता हूँ। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो वहाँ पर एक अशोका हॉस्पिटल है ब्रिजवासी होटल के सामने, उस अशोका हॉस्पिटल के बगल में एक चाय का खोखा है जहाँ पर एक हरिओम नाम का लड़का चाय बेचा करता था अपने पापा के साथ, और वो हमारे इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज पढ़ने आता था। कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज ये घटना है कि ताइवान में उसको अभी परसों गोल्ड मेडल मिला है कराटे में, जो कुंफू ताइक्वांडो जो चीजें होती हैं। चाय वाले का आपके पापा कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पापा तो मजदूर थे, उन्होंने तो बिल्डिंग बनाने का काम किया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पापा कौन से, फर्क पड़ता है कि मैं कैसा हूँ। ऑलराइट, तो आप टैलेंट एक्वायर कर सकते हैं, आप अपने बेस्ट करियर को चूज कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी लाइफ में एक विजन, एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि आज अगर 19 या 20 तारीख है, कितनी तारीख है आज? 19, तो 18 तारीख से पहले जो आपकी जिंदगी में हुआ, रात को वो जब आप देखोगे तो वो ड्रीम होता है, सपना, और 18 तारीख से बाद में जो होगा वो आपको दिखाई देगा तो वो विजन होता है, फ्यूचर विजन होता है, और पास्ट होता है ड्रीम, दोनों का मतलब सपना है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को विजनरीज कहा जाता है। तो आप एक विजन बना सकते हो कि मैं क्या करूंगा, आप अपने खराब दोस्तों को छोड़ सकते हो, नए बना सकते हो, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं आपके, ये बना सकते हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, कोई बुक पढ़ाई कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कर सकते हो, जीनियस की तरह क्वेश्चन करो, देखो इसका सलूशन क्या है, इम्पैक्ट कैसे होगा, काम करना शुरू करो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है कि नई भाषा, इंग्लिश नहीं आती तो कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ वो जिसके 10वीं में 3 नंबर थे, कुछ मुश्किल नहीं है, केवल विल पावर चाहिए, और ऐसे कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती लैंग्वेज में। आप चाहो तो करियर को बहुत महान बना सकते हो, कोई नई लाइफ स्किल डेवलप कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी में कोई गोल बना सकते हो, आप चाहो तो अपनी नई पर्सनैलिटी पैदा कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आज अभी आपके पास है, रोज होती है, रोज आती है सब अपॉर्चुनिटी, ये जीनियस की पहचान होती है। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सब लोग इन सारी अपॉर्चुनिटीज को क्यों मिस कर देते हैं? अभी मैं एमबीए फर्स्ट ईयर में हूँ, आज मेरा पहला दिन है, अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, आज मेरा पहला दिन है, और मैं 4 साल के बाद बीटेक करके भी चला जाऊंगा, मैं ऐसा ही कैसे रह गया, केवल एक डिग्री लेके गया इधर से। देखो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग बीटेक कर रहे हैं 4 साल बाद, जो लोग एमबीए कर रहे हैं 2 साल बाद, जो बीबीए कर रहे हैं अगेन आफ्टर 4 इयर्स, मान लेते हैं 5 साल बाद लोग आपसे, बच्चों, कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि आपका हेयर स्टाइल कैसा था, आप कैसे कपड़े पहनते थे, आप हिंदी बोलते थे या इंग्लिश, आप जीन्स पहनते थे या ट्राउजर, या आप धोती कुर्ता पहनते थे। लोग केवल आपसे एक सवाल करेंगे बस, और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और वो सवाल होगा कमाता कितना है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब 4 साल बाद नहीं हुआ, तब लोग आपकी बहुत सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पास निकालेंगे। तो ध्यान रखो, कमाता कितना है, ये जवाब के लिए तैयार हो जाना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंसान अपॉर्चुनिटी को पहचान क्यों नहीं पाता? फिर से आप लोगों से मैं इम्पैक्ट होना चाहूँगा, बताइए, मतलब क्यों एक अवसर निकल जाता है किसी दिमाग से, सोचते क्या? ओके, कई बार उसको दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इंसान अवसर को खो देता है, क्यों? आप खड़ा करके प्लीज बता सकते हो कि सर मेरे पास जवाब है, जो सोचते हो वो बेस्ट होगा, प्लीज बेटा बताओ, जोर से बोलो। हाँ, ओके, जिनको पहचान नहीं होती है वो कह रहे हैं कि अगर कोई मौका खटखटा भी रहा है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। इधर से कोई बताएगा कि क्यों इंसान अपॉर्चुनिटी नहीं पहचान पाता? नहीं पता? सोचो, एक्चुअली क्या हेजिटेशन है। बात ये नहीं है कि आपको जवाब नहीं पता, बात ये है कि मेरे को बोलने में डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे, कहीं पड़ोसी मजाक तो नहीं उड़ाएगा।
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, इफ यू आस्क क्वेश्चन यू आर फूल। अगर आप प्रश्न करते हो तो आप मूर्ख हो फॉर 3 मिनट्स। इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन यू आर फूल फॉर होल लाइफ। अगर प्रश्न करोगे तो कोई आपका मजाक भी डालेगा तो वो 3 मिनट से ज्यादा नहीं होता, जवाब तो मिलता है ना। पर अगर क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रह जाते हैं। तो और 2-3 मुझे बताइए रिप्लाई प्लीज, के इंसान अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं फाइंड करता प्लीज। ब्यूटीफुल। हमारा नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान होता है, तो अपॉर्चुनिटी जब आती है तो हमारा ध्यान चला जाता है। कोई और बताना चाहेगा प्लीज? और देखो, रीजन एक्सक्यूज बहुत होते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, परंतु मैं आपको जो चीज बताना चाहूंगा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि इंसान का ब्रेन इंसान को किसी भी हाइट पे ले जाने की ताकत पूरी रखता है? क्या ये बात गलत है या सही? आवाज में दम होना चाहिए कि मेरा जो ब्रेन है, मैं एक इंसान हूँ, ये चाहे तो मुझे किधर भी लेके जा सकता है। यानी कि मेरे ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना तो मैं पागल हूँ, ना मेरे दिमाग में कोई खराबी है, मैं ठीक ठाक इंसान हूँ। तो एक बात तो ये जायज है कि इस ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से हर कोई और हम में से हर कोई, जितने भी लोग हैं, अगर वो अपनी लाइफ में साइंटिस्ट बनना चाहें तो करियर की शुरुआत एक्चुअली बनने बिगड़ने की मेरी रिसर्च कहती है 18-19 साल से शुरू होती है। टीन एज में तो चलो मौज मस्ती मार ली, स्कूल में 12वीं कर ली, जैसे भी पढ़ाई की नहीं की, सो के। और जो रियल बहुत सेंसिटिव टाइम होता है ब्रेन का, इसके अंदर लोब्स होते हैं बच्चों, बहुत टेक्निकली जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। अभी प्रीफ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, कितने लोब्स होते हैं जो काम करते हैं राइट और लेफ्ट। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहें तो ऐसे ही बैठा करते थे ये लोग। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको कहते हैं बिल्कुल डफर है तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। आपका ब्रेन चाहे तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन बना दे, और आप चाहे तो मैडम क्यूरी भी बन सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर एक पूरी ताकत है। अगर आप सोच लें कि साइंटिस्ट नहीं बनना, मैं तो म्यूजिकल लाइफ में जाऊंगा, तो एमएस सुब्बालक्ष्मी से लेकर पंडित भाटखंडे, उस्ताद अल्लाह रखा, एल्विस प्रेस्ली के इंग्लिश गाने आप सुनते हैं, और पंडित पुलस्कर भी यही बैठे हुए ऐसे ही क्लास को देते हैं। यानी कि वो अपनी जवानी के टाइम पे एक नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, आप ही की तरह हेजिटेट रहते थे, कॉन्फिडेंस नहीं होता था, 1000 तरह की समस्याएं होती थी उनको, परंतु वो जब धीरे धीरे बड़े होकर उन्होंने चेंज किया, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप चाहें तो लिटररी मास्टर बन सकते हैं, तो लियो टॉल्स्टॉय, विलियम वर्ड्सवर्थ, मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आप इनको पढ़ो तो मैंने खूब पढ़ा इन लोगों को, तो ये लोगों का बचपन कोई बहुत स्पेशल नहीं था, आप हमारी तरह ही थे। तो आप में से ही चेंज होते हैं, कैसे होंगे अभी बताऊंगा। अगर आप क्रिएटिव जीनियस बनेंगे, देखो पेंटर वैन गॉग का नाम नहीं सुना था। हमारे देश में 90 साल की उम्र में लोग चारपाई पे पड़े रहते हैं, और ये महान हस्ती पेंटिंग करती थी, एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए की इन द एज ऑफ 90। तो इंसान का ब्रेन उसको कुछ भी करवा सकता है। आप चाहो तो पिकासो बन सकते हो। विजनरीज में एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर जवाहरलाल नेहरू और जीआरडी टाटा तक क्लास में ऐसे ही बैठा करते थे, और वो भी घबराया करते थे, वो भी नर्वस हो जाते थे। ये एज ही ऐसी होती है कि ये आपके हाथ में नहीं होती, पर अब शुरुआत है। अब आपके अंदर शुरुआत होगी, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, अब शुरू हो जाओ फूल की तरह खिलना। प्लेयर बनना चाहो तो फिल जॉन से लेकर रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर से लेकर मोहम्मद अली तक ऐसे ही बैठते हैं। उस चाय वाले को कभी देखने आना, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये ताइवान में गोल्ड मेडल यूपी के लिए लेकर आया लड़का 19 साल का। और वो हमारे इंस्टीट्यूट में कहता था, सर क्या जूडो कराटे सिखाओ आपके बच्चों को? आप कहते थे नहीं, तो इंग्लिश नहीं कर जा। तो वो पूरा दिन प्रैक्टिस किया करता था। अगर आप फ्रीडम फाइटर बनने की सोचते हो तो नेल्सन मंडेला, लूथर किंग से लेकर महात्मा गांधी और अन्ना हजारे, ये सब बचपन में आम थे। महात्मा गांधी ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कोई बचपन से ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहो तो बिजनेसमैन बनना, रतन टाटा से लेकर अजीत जी प्रेम जी, लक्ष्मी मित्तल, नारायण मूर्ति, धीरूभाई अंबानी, नरेश गोयल। कोई मुझे प्लीज बता सकता है नरेश गोयल कौन है? एनी स्टूडेंट प्लीज? नरेश
पीयूष गोयल जेट एयरवेज कंपनी का मालिक है और किसी टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हुआ करते थे। इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट और अब बहुत बड़ी एयरलाइंस का मालिक। स्टोरी पढ़ोगे तो आंखें खुली रह जाएंगी कि कैसे इंसान ऑर्डिनरी से स्पेशल हो जाता है। और फिर से मेरा सवाल ये है कि इतनी सारी जो बड़ी बड़ी हस्तियां इंसान बन जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को पता ही नहीं था कि वो जब न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे बचपन में कि मैं कभी राष्ट्रपति बनूंगा। ये बस हमारी अपॉर्चुनिटी की कुछ हुई, क्यों मतलब मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो इसके पीछे एक बात समझने की, एक्चुअली ये जो हमारा ब्रेन है, अगर आप इससे काम करोगे तो ये आपको ऊंचाई पे लेके जाता है और जिस वक्त आप इससे काम लेना बंद कर देते हो तो ये आपको नीचे लेके जाता है। ये 24 घंटे काम करता है। काम लोगे तो आपके फेवर में और काम नहीं लोगे तो आपके खिलाफ। ये इसकी पहली पहचान है। खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर, यानी कि जब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता हूँ और जब कुछ करता हूँ तो मैं ऊपर जाता हूँ। ये ब्रेन शांत नहीं बैठता कभी भी, कुछ भी करेगा इधर इन योर फेवर और अगेंस्ट। तो पहली बात यानी कि ये जो इंसान का ब्रेन है ये अब्दुल कलाम आप ही को बनाता है और यही ब्रेन आपको क्या बना देता है? अब्दुल कसाब। केवल ब्रेन की बात है, आप किस पैटर्न पे अपनी लाइफ को लेके जाते हैं। तो अभी हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। आप अपनी फैकल्टी से पूछें या जिनके ऊपर 50 एंड अबव है वो बताएंगे कि जब वो अपने टाइम पे कॉलेज जाया करते थे तो फैसिलिटीज नहीं होती थी कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिली हुई है, बस आई हुई है, मम्मी पापा फटाफट पैसे दे रहे हैं, बैंक लोन्स दे रहे हैं, इतने शानदार मतलब 5 स्टार होटल की तरह कॉलेजेस होते हैं, एसी, ऐसा सब नहीं होता था। पहले फैसिलिटीज नहीं होती थी और दूसरी बात सबसे पहले करियर की चॉइस नहीं होती थी। कुम्हार का बेटा कुम्हार, मोची का बेटा मोची, जुलाहे का बेटा, उसकी डेस्टिनी में लिखा होता था कि तू जिस घराने में पैदा हुआ है। किसान का बेटा राजा बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था, पर आज एक इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, किसान का बेटा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर का बेटा फोटोग्राफर बन सकता है। ये फैसिलिटीज हमें मिली हुई है, पर हमारी हालत बच्चों ऐसी शीशे में बंद है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ मिला हुआ है और फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी चारों तरफ है। इसकी एक वजह जो मेरे को पता चलती है वो ये है कि जब मैं पूरे संसार के लोगों को तरक्की करते हुए देखता हूँ, आगे बढ़ते हुए, उस तरक्की करते हुए देखने के साथ मैं खड़ा रहता हूँ तो मेरे अंदर एक कंपैरिजन डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ और मैं अपॉर्चुनिटी को लॉस करना शुरू कर देता हूँ। मुझे लग रहा है इनके नंबर ज़्यादा आ गए, मेरी बैक आ गई, मुझे लग रहा है ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कंपेयर दूसरों से, खुद से नहीं। ये एक बात है और इसको मैं साबित करने के लिए मुझे 5-6 बच्चों की आवश्यकता है। इस पूरी क्लास में अभी तक आपने मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, थोड़ा सा और करो। 4 मुझे हट्टे कट्टे लड़के चाहिए, प्लीज स्टैंड अप एंड कम। जल्दी, मतलब कि अगर दीवार में घुसा मार दे तो बस मजा आ जाए, ऐसे बच्चे प्लीज प्लीज। पतले तो अपनी तरफ देखो ही मत, ढूंढो कि कौन हेल्थी है। अगर आपके बगल में कोई हेल्थी बच्चा बैठा है तो मुझे बता दो, मैं उसको पकड़ लेता है। ओके स्टैंड अप। अब यहाँ पे पड़ोसी हेल्प करेंगे, फंसाने का काम अच्छा होता है। अगर लाइफ में कुछ सीखना है ना तो कुर्सी से उठना सीखो, पहली बात तो ये। कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं होता। चिंता मत कर, आगे बढ़ना चाहता है, सोचता है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। चलो 3, एक और चाहिए। और बस एक और चाहिए। 5 नहीं, आगे पीछे कोई पड़ोसी हेल्प कर दे मेरी प्लीज। ओके चलेगा। Now female, please give me your कटेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कटेगी तो मैं पेमेंट करूँगा। सबसे फर्स्ट एक और दे दो ताकि थोड़ा अच्छे से देखो। ये आपको एक्टिविटी आपकी आगे करनी ऐसी वाली। अच्छा प्लीज मुझे आप बताइए 5 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है बच्चा? दिस वन? सबका वोट है यूनानिमस चॉइस।
अभिषेक क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। किस लेवल का बिजनेसमैन? टॉप लेवल। अभिषेक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर। अभिषेक अभिषेक एक टॉप लेवल के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अभिषेक का जो गोल है वो यहाँ पर आके खत्म होता है। 2 साल की एमबीए और 1-2 साल की प्रैक्टिस और फिर सीधा स्ट्रेट पे बिजनेसमैन। तो 4-5 कदम का 1 कदम 1 साल है, ये डिस्टेंस है। और जो पीछे जो 4 लोग खड़े हुए हैं, एक है अभिषेक की बैड हैबिट, दूसरा है अभिषेक का बैड फ्रेंड सर्कल, तीसरा है अभिषेक का नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, और चौथा अभिषेक के वो रिश्तेदार जो इसको कोसते रहते हैं कि तू पैदा ही गधा हुआ है। इसमें इंक्लूडिंग फैमिली पीपल भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली के लोग। ये 4 लोग हैं जिन्होंने अभिषेक को पकड़ा हुआ है और अभिषेक इनके बावजूद कोशिश करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं टॉप लेवल का बिजनेसमैन। तो गाइस आर यू रेडी? आपको पता है ना आपको क्या करना है? 1 इंच भी बस ये दोनों हाथ में बहुत चलो अभिषेक प्लीज गाइस आप लोग सपोर्ट करो अभिषेक की। कम ऑन कोशिश कर सकता है तो बिजनेसमैन बनेगा। अभिषेक को मोटिवेट कर रहे हैं, होएगा होएगा। आपको क्या लगता है ये शाम तक लगा रहेगा, होएगा क्या? अभिषेक को ये बात थोड़ी देर में समझ में आई। तो अभिषेक ने क्या किया, अपनी सारी बैड हैबिट्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि यार ये कौन सी हैबिट्स हैं जो मुझे बिजनेसमैन बनने से रोकेंगी, और वो सब बैड हैबिट्स हटा दी अभिषेक ने और एक स्टूडेंट हटा। अभिषेक को समझ में आ गया कि यार ये फ्रेंड सर्कल भी जो होता है ना, हर दोस्त जरूरी होता है ऐसा हमेशा नहीं है। दोस्त तो होना चाहिए पर आगे बढ़ाने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। तो उसने फ्रेंड्स भी छोड़ दिए। अभिषेक ने देखा कि मेरा एटीट्यूड जो है वो ज्यादा सही नहीं है, तो इसको मैं पॉजिटिव करूं। ट्रेनिंग्स लेनी शुरू कर दी, टीचर्स के पास, फैकल्टीज के पास जा जाकर अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव करेगा सीखना शुरू कर दिया। डेडिकेशन के काम करना शुरू कर दिया। बट एक जो फैमिली है वो उसको नहीं छोड़ पाया, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है, मम्मी पापा को कहाँ छोड़ेगा। अब है तो है, ओनली मतलब से अब अभिषेक बिजनेसमैन बनना चाहता है और केवल फैमिली उसके पीछे है और कोई नहीं है। अभिषेक लेट्स ट्राई अगेन 1 2 3 फैमिली प्लीज गिव हिम बिग हैंड। अगर अभिषेक एक फैमिली को इसके साथ इसका पार्ट भी है कि अगर यही चारों लोग इसको आगे से खींचे, दिस इज कॉल्ड गुड हैबिट्स, दिस इज कॉल्ड गुड फ्रेंड सर्कल, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नाइस ट्रेनिंग। अब ये लोग आगे से जब खींचेंगे तो आपको लगता है कि अभिषेक बहुत देर में पहुंचेगा और जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम कभी कभी ये देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, खूब पढ़ाई लिखाई चल रही है दिन रात, पर हमारा एटीट्यूड सही नहीं होता लाइफ में। हमारे फ्रेंड सर्कल हमारा खूब टाइम बर्बाद करते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनती भी होते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आप प्लीज जान जाओ कि आपको कोई चीज बनने से जो रोकती है वो आपके आसपास होती है। थैंक यू गाइस। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, तो जिसको देख देख कर जब मैं क्या होता हूँ फिर डेली, अभी तरक्की तो कर नहीं पा रहा मैं, लोग
आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं का वहीं रह गया, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे से सब आगे। People speak good English, I don't. People have good confidence, I don't have. I am 100% hesitant boy, तो मैं क्या हो जाता हूँ रोज अपसेट। फिर क्या होता हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मुझे पता ही नहीं चलता गड़बड़ किधर है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, डिजेक्टेड फील करता हूँ, चिंता में पड़ जाता हूँ, हॉस्टाइल और फिर स्ट्रेस से भर जाता हूँ और पढ़ाई लिखाई पे असर पड़ने लगता है। अभी होता क्या है, आजकल लोगों की लाइफ ऐसी होती जा रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सारी समस्याओं के पीछे जो इंसान अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, that we are suffering from two mental disease। और मेरा रिसर्च ये कहता है 98% लोगों में ये बीमारी है। 100 में से कितने? तो यहाँ अगर 200 बच्चे बैठे तो कितनों में होगी? इस समस्या का दूसरा पहलू क्या होता है, बीमारी तो है, but either we don't accept or we do not know that we are suffering from these two diseases। बीमारी का पहला नाम है 100% accuracy syndrome disease। इस बीमारी का शिकार जो बच्चा होता है, वो कोई भी हो, we don't take decision, वो डिसीजन नहीं ले पाता। मुझे कई लोगों ने बताया सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझसे डिसीजन नहीं लिया जाता। और इस बीमारी का शिकार जो स्टूडेंट होगा, इधर बॉय और गर्ल, वो हमेशा ये बोलेगा जो भी करूंगा परफेक्ट करूंगा। अगर मूवी बनानी है तो शोले, नहीं तो फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तो बनाऊंगा नहीं। अगर मेरे को कहीं बहुत बड़े कॉलेज में जाना है तभी मैं आप ये करूंगा। मेरे को मेरे जैसा कॉलेज अगर मिलता है, कुछ भी होता है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, नंबर आएंगे तो 100 और नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। 100% accuracy syndrome disease। दूसरी बीमारी में बच्चे को नाम होता है क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम डिजीज। क्रॉनिक टुमारो में क्या करता है, वो एक्शन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो कहता है जो भी करूँगा कल करूँगा, आज नहीं करूँगा। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज तो मूड भी मेरा ऐसे ही है, बस पढ़ने का तो मूड नहीं है। ये दो बीमारियां उसके दिमाग में होती हैं। अब पहली वाली बीमारी जो है 100% accuracy syndrome, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक ऐसा पागलपन, ऑब्सेशंस, दीवानापन, जुनून, जोश, 100% परफेक्ट मॉडल इन द माइंड। मॉडल किधर बना है? मॉडल किधर है? माइंड में। किसके माइंड में? मेरे माइंड में। मेरे माइंड में 100% मॉडल बन गया है, डिसअलाउइंग यू टू डिसाइड, जो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करता, डिसाइड नहीं करता, कोई चीज सेटल नहीं कर सकता अगर वो लेस देन 100% है। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मैं कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैंडीकैप और कंफ्यूजन में रहता हूं और मैं हेल्पलेसनेस और अनहैप्पीनेस में जिंदगी बिताता हूं और मैं अपॉर्चुनिटी को मिस करता रहता हूं। इस बीमारी का शिकार जो बंदा है, वो सोचता है कि डिसीजन होना चाहिए तो डिसीजन में कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर जॉब होगी तो कैसी होगी? अभी प्लेसमेंट कंपनी आ रही है, उन्होंने मुझे पसंद किया तो मुझे कंपनी समझ नहीं आ रही, बहुत सारी वजह होती है। उसको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट ऑफिस होना चाहिए, परफेक्ट फ्रेंड्स, बिजनेस बढ़िया होना चाहिए, घूमने जाऊंगा तो लोकेशन स्विट्जरलैंड से कम नहीं होनी चाहिए, टाइम परफेक्ट होना चाहिए, मूड बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट फूड होना चाहिए और परफेक्ट बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, सिचुएशन परफेक्ट होनी चाहिए। उसके दिमाग में 100% घुसा रहता है। अब क्रॉनिक टुमारो में क्या होता है, जो भी करूंगा कल करूंगा, ये क्या चीज है? इसके अंदर स्टूडेंट कहता है एक मैडनेस और एक फैसिनेशन, फिक्सेशन, मीनिया है, डिले ऑल एक्शंस टू ए लेटर डेट एंड टाइम, जो अगले दिन और टाइम के लिए उसको खिसकाता रहता है। क्यों खिसकाता रहता है? क्योंकि उसको गारंटी चाहिए रिजल्ट। इंग्लिश सीखने जाऊंगा, मैं कोई गारंटी दे दे आ जाएगी क्या? स्टेज पे तो बोलूंगा, जब लोग गारंटी दे दे तालियां बजाओगे क्या? जूते तो नहीं मारोगे, अड्डे तो नहीं मारोगे। कुछ भी काम करने से पहले गारंटी दो कि ये काम बढ़िया होना चाहिए, इसमें कोई कमी ना हो जाए। अगर ऐसी गारंटी मुझे कोई देगा तो मैं करूंगा, वैसे मिलती नहीं है तो क्या करता हूँ? लॉस ऑफ टाइम, पीपल, लॉस ऑफ पीपल, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, ये चलती चली जाती है। और फिर क्या होता है, जिसकी वजह से आई फील लो, मिजरेबल फील करता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, अपनी सेल्फ एस्टीम को घटाता रहता हूँ और फाइनली लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज नहीं, कल या फिर कोई दिन सोचेंगे,
एक्सरसाइज अभी कोई जरूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर ना कहते तब तक तो करनी नहीं है। ऐसा स्टूडेंट कहता है कि एक दिन आएगा जब मैं लोगों को डेलीगेट करूंगा, जब मैं खुद को अपग्रेड करूंगा। कोई भी काम तो आज नहीं करना चाहता, कल पे टालता रहता है। ट्रेनिंग सेशन आज नहीं अटेंड करूंगा, कल करूंगा। मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कल सुबह से करूंगा, अभी तो शाम को मूड खराब है, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया है, तो हमेशा टाइम बर्बाद करता रहता है। हेल्थ पे फोकस, पर्सनालिटी डेवलप करूंगा, जब टेंशन नहीं होगी तब काम करूंगा, जब थोड़ा वक्त ज़्यादा मिलेगा, किसी दिन 25 घंटे होने लग जाएंगे तो लाइक। अब इस तरह से वो अपनी जिंदगी बिताएगा और अपॉर्चुनिटी उसके आगे से नॉक करके चली जाती है। अब सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस नंबर 1, सॉल्यूशंस पहला है कि आपको हमेशा अपने दिमाग में स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए। सबको 100 चाहिए, आपको भी चाहिए और वो मिलेंगे, बट एक पैटर्न के साथ मिलेंगे। यू वुड थिंक 75%, यानी कि ये तो मेरा टारगेट है, ये तो मैं लेके छोड़ूंगा, बट मैं एक स्टेप से नहीं ले सकता, फर्स्ट स्टेप में मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे ये जो 75 वाला व्यू आप सर्कल देख रहे हैं, कंसंट्रेट इस पे करना है, 60 to 75। और जब ये हो जाएगा तो फिर जो 25 बचा है इसको मैं मानूंगा अब ये 100 है। अब इसके 2 हिस्से कर दूंगा मैं। अब 2 हिस्सों में एक मेरा 75 और फिर से वो 25 हो जाएगा। फिर रेड वाले पे कंसंट्रेट करूंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन 100 है, फिर इसका मैं 75 25 कर दूंगा। ऐसे करते करते मैं 5-6 स्टेप लूंगा और मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा। तो इससे क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। आप बेबी स्टेप ले लेके अपने आप को प्रगति की राह पे बढ़ा दोगे। और ये आज के यूथ में बहुत भारी समस्या है। आज ही आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। स्टार्ट विद 5 meters, स्टार्ट विद 100 meters, द डे विल कम, यू विल वॉक और रन और जंप व्हाटएवर यू विश। अब रिसर्च कहती है कि आप तैयारी करो या मत करो, जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे अपना किसी भी चीज में, आप हमेशा 60 to 75 रिजल्ट दोगे, इवन विदाउट प्रिपरेशन। बशर्ते आपको डर नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बोलने के लिए किसी को बुला लूँ, अगर फियर नहीं है तो आप 60 to 75 रिजल्ट दोगे, पीपल वुड क्लैप। ये हमेशा होता है। पर मुझे चाहिए कि अभी आपको क्या लग रहा है, हो सकता है मैं आज ही लेक्चर तो आपने मेरी वीडियो देख ली, चलो क्या है, पर कभी ना कभी तो मैंने भी लोगों को एड्रेस किया होगा, कभी ना कभी तो मैंने भी तो कुछ बोला होगा। नंबर 2, सेकंड पार्ट जो होता है, पहला 75 खुद करो और सेकंड अपने इकोसिस्टम से करवाओ, लोगों की मदद लो, और बहुत सारे आसपास में लोग होते हैं, ये सब मिलके हेल्प करते हैं। इसको डिटेल में कभी समझाऊंगा अगर मुझे दोबारा आने का मौका मिलेगा। हाउ डज इट वर्क? सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड अ जीनियस विद इन यू। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो हैबिट में हो जाना चाहिए। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, डू नॉट वेट फॉर एनीबॉडी एल्स। W I बोले तो इम्पैक्ट, S सॉल्यूशन पे काम कर, एक ह्यूमन बीइंग बन। इस कॉलेज का नाम उतना ऊंचा कर दे कि लोगों को पता चल जाए कि तू फलाने कॉलेज में पढ़ता है। अभी लोग बोलेंगे कि कहाँ पढ़ता है, IIM में पढ़ता हूँ मैं, ऐसा। तो आपको इस कॉलेज का नाम करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन नंबर 3, फाइंड ए मैन विद द डिस्टिंक्ट फोटे। डिस्टिंक्ट फोटे क्या होता है बच्चों? कभी कभी एक इंसान किसी फील्ड में बेहतर होता है, एक किसी फील्ड में एवरेज होता है, फिर एक और इंसान मिलता है जो उसी फील्ड में गुड होता है, फिर एक और इंसान मिलता है जो उस फील्ड के लिए ही पैदा हुआ है। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का डिस्टिंक्ट फोटे, यानी कि वो किस काम के लिए पैदा हुआ है, क्या करता है वो, उसका डिस्टिंक्ट फोटे क्या है? रॉन्ग, बैटिंग। थैंक यू। सचिन तेंदुलकर एक बैट्समैन है। क्रिकेट में तो 100 काम होते हैं। तो कह रहा है अगर MBA करनी है, अगर BTech कर रहे हो, तो आप जो आगे बनना चाहते हो उस फील्ड का एक परम पिता में गुरु, एक ऐसा इंसान जो उस फील्ड में आपको झटके में पहुंचा दे, उसको ढूंढो, उसके चरणों में पड़ जाओ, उसके साथ रहो और वो सारे गुण सीख लो। जैसे अगर मेरे दांत में दर्द है तो क्या मैं कारपेंटर के पास जाऊं? आई गो टू द डेंटिस्ट, क्योंकि एक्सपर्ट ही मेरी हेल्प कर सकता है। तो मेरी प्रॉब्लम जो होती है वो एक्सपर्ट सुलझाएगा। तो डिस्टिंक्ट फोटे एक और सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद अगर आपने डिस्टिंक्ट फोटे ढूंढ लिया तो स्पीड बढ़ जाएगी,
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, टीम वर्क बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इतने सारे काम आपको मिलेंगे विरासत। फिर उसके बाद एक सोल्यूशन, एक रेसिपी है सफल इंसान की। जीनियस हैं आप और सफल भी होना चाहते हैं तो सफल इंसान के अंदर कुछ 4-5 गुण होते हैं। नंबर 1, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है, तो मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस पे काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? दुनिया में जब आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसका एक ही इलाज है, डर का सामना कर। किताब पढ़ के आप डर को दूर नहीं कर सकते। अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है तो कोई ऐसी चीज है जो स्विमिंग आपको किताब पढ़ के आ जाए? आपको पानी में जाना पड़ेगा। ड्राइविंग से डर लगता है तो ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस होने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे। इंग्लिश बोलने से डर लगता है, देन स्टार्ट। फिर उसके बाद क्रिएटिविटी, आपका क्लियर फ्यूचर गोल होना चाहिए कि मैं इसलिए इस कॉलेज में पढ़ने आता हूँ और मेरे को आगे जाकर ये काम करना है। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या मुझे कोई बता सकता है कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? इज इट इंग्लिश बोलना और समथिंग एल्स? अपने आप को एक्सप्रेस करना, सामने वाले को कन्विंस करना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो काफी हद तक सही है। वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, बट जब आप बोलोगे ही नहीं तो कौन जानेगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं। चुप रहना कभी कभी ठीक नहीं होता। चुप रहना अच्छी बात है, बट वहाँ नहीं जब लोग आपसे सवाल करते हैं मल्टीपल लाइफ स्किल। और उसके बाद आपके अंदर एक आम इंसान से थोड़ा डिफरेंट करेज होना चाहिए। ये गुण होते हैं सक्सेसफुल इंसान के। जीनियस होने के साथ अगर ये गुण भी हैं तो आप बहुत अच्छे चले जाओगे। सोल्यूशन नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। इस कॉलेज में जब आप रहोगे, इंसान एक्चुअली कहते हैं कि 70-87 पीपल दे वेस्ट टू आवर्स इन सर्च होती होगी, काइंडनेस करते हैं। परंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? और सोच लो, कैलेंडर में बेशक 365 दिन होते हैं, परंतु कैलेंडर में उतने ही दिन होते हैं जितने दिन आप काम करते हो। तो आपका निजी कैलेंडर होता है। 365 तो यूनिवर्सल होते हैं। अगर मैं साल भर कुछ ना करूँ तो मेरे कैलेंडर में 0 दिन। अगर मैं 10 दिन काम करता हूँ तो मेरा कैलेंडर केवल 10 दिन का ही है। If I work 100 days, my calendar is of 100 days. तो don't get befooled by calendar. कैलेंडर से मूर्ख मत बनना। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन का आपका कैलेंडर है। अब एक होती है टू डू लिस्ट और एक होती है नॉट टू डू लिस्ट। ज्यादातर दुनिया टू डू लिस्ट बनाती है कि ये काम मुझे करने हैं, बट कृपया जो काम नहीं करने चाहिए उनकी लिस्ट बनाओ। आज मैं किसी को SMS नहीं करूंगा, ये मेरी आज की नॉट टू डू लिस्ट है। आज मैं किसी को फोन कॉल्स नहीं करूंगा। आज मैं फेसबुक पे नहीं बैठूंगा। आज मैं ट्विटर यूज नहीं करूंगा। आज मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा टाइम बहुत खा रहे हैं। दिस इज माई नॉट टू डू लिस्ट। जब आप उसको बनाएंगे और उस पर भी काम करेंगे तो बहुत टाइम सेव करेंगे। टू डू लिस्ट हाफ होती है। 4 प्रकार के लोग उसमें इंपॉर्टेंस में रहते हैं। आप हमेशा किसी न किसी एक में रहोगे। इनको एक एक करके मैं 5 मिनट्स में आपको समझा देता हूँ। एक होता है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जो इंसान इस वाले क्वाड्रेंट में अपनी लाइफ बिताता है वो हमेशा एक तरह की फायर फाइटिंग लाइफ में रहता है। उसकी जिंदगी हमेशा गर्म तवे पे होती है। वो हमेशा एक हॉट सर्कल के अंदर रहेगा और उसकी जिंदगी में क्या होगा? स्ट्रेस रहेगा, बर्नआउट रहेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करेगा, फायर फाइटिंग लाइफस्टाइल होगा और वो हम अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इस पर फोकस करेगा। इसमें रहना बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर सकता है और आप हो सकता है MBA BTech जो भी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सफल ना हो। इसलिए दिस इज फर्स्ट पॉइंट। इसको मैं कभी और समझाऊंगा। सेकंड, तीसरे नंबर का जो क्वाड्रेंट है इसको कहा जाता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई गिव एग्जांपल। मान लीजिए मैंने ये सोचा कि कल से मुझे सुबह सुबह पूजा करनी है और उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा या दूसरे काम करूंगा। तो मैंने सुबह उठा, अपने आप को फ्रेश किया, स्नान किया और मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गया। अब क्या हुआ? मेडिटेशन के बाद
10-15 दिन मेरी लाइफ ठीक चली, बट आफ्टर 15th डे जैसे ही मैं बैठा 15 मिनट के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा, मेरे को जाना है टॉयलेट। अभी मैं और बैठा तो और दर्द तेज हो गया। मुझे बताइए मेरी कॉमन सेंस के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई गो टू टॉयलेट और शुड आई कंटिन्यू माय मेडिटेशन? आई शुड गो टू टॉयलेट। एक अर्जेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, पर कोई इम्पोर्टेंट को नहीं होने देगा अगर आपने अर्जेंट फिनिश नहीं किया। जरूरी नहीं है कि उस अर्जेंट काम की कोई वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, पर वो आपके इम्पोर्टेंट को हमेशा दुखी करता रहेगा। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अर्जेंट काम क्या है और आपके इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो जो 3 में रहते हैं, ये वो चीजें होती है जिसमें अचानक कोई इंटरप्शन आ जाए, जैसे अचानक फ्रेंड की कॉल आ गई, किसी की मदद करनी है, पापा ने बुला लिया, कोई कॉल आ गई, कोई मेल आ गई, जिसमें आपका बस नहीं चलता। ज्यादातर लोग इसमें भी जिंदगी बिताते हैं, वो इंटरप्शंस में पड़े रहते हैं हमेशा, आप हैं मुझे मार, तो इसमें भी लाइफ खराब हो जाती है। और इसके अंदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म फोकस, फिर से क्राइसिस आएंगे, आपकी फीलिंग्स में कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये काम होते हैं। फिर उसके बाद है आपका नंबर 4 पॉइंट्स। इसमें जो लोग जिंदगी बिताते हैं, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, उनकी जिंदगी में कुछ भी अर्जेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे लोग हमेशा एंटरटेनमेंट में रहते हैं सुबह से शाम तक। ये लोग क्या करेंगे? इररिस्पॉन्सिबल लाइफ होती है ऐसे लोग। कोई जिंदगी में अभी फ्रेंड ने कहा चल मूवी देख के आते हैं चेन्नई एक्सप्रेस, और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उसको छोड़ के चल रहे हो। अचानक किसी की कॉल आ गई, आप उसके साथ चल दिए। अचानक मूड हुआ तो टीवी खोल लिया, ये भी नहीं पता कौन सा चैनल देखना है, थोड़ी कुछ देर में चैनल बदलता रहता हूँ, ये सब होता है। मेरी हाई डिपेंडेंसी हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, और मैं ऑर्गेनाइजेशन में जब नौकरी करूंगा तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकूंगा अगर मैं 4 में रहता हूँ तो। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? एक विजन होता है मेरी लाइफ में, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मेरी लाइफ बैलेंस चलती है, डिसिप्लिन होता है, कंट्रोल होता है, ये सब मैं करता हूँ। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सफल लोग होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो 2 में रहना पसंद करते हैं, और 2 का मतलब है प्लानिंग करना। इस हफ्ते मुझे क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें। लास्ट क्लिप है ये इसकी। इस सेशन में आपको ये बताया जाता है कि जो जीनियस होता है वो कोई भी काम डेली बेसिस पे करेगा, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना होता हो, उसमें खूब गलतियां हैं तो रोज प्रैक्टिस करेगा। और जो लोग इस तरह के नहीं होते, वो कभी कभी कोई काम करते हैं बट इरेगुलर बेसिस पे करते हैं, चाहे वो बढ़िया ही होता है, उसको ठीक नहीं कर सकते। इन द एंड मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको इस कॉलेज में 2 साल 3 साल या 4 साल बिताने हैं बच्चों। टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तरह तरह के नए नए कॉम्पिटिशन्स आते जा रहे हैं लाइफ में। आपने पता नहीं क्या सोच के यहाँ पर एडमिशन लिया, हो सकता है मम्मी पापा ने जबरदस्ती दिलवाया हो सकता है आपकी मर्जी हो सकता है दोस्तों के साथ आ गए हो, और लाइफ तो आपकी अपनी है, जीना तो आपको ही पड़ेगा। और इस कॉलेज से आप एक चीज़ को निश्चित लेकर जाओगे, डिग्री। तो ये कॉलेज आपको कॉन्फिडेंस तभी देगा जब आप कुछ काम करोगे। ये कॉलेज आपको बेस्ट प्लेसमेंट भी दे देगा, बट उठना तो आपको ही पड़ेगा। आपकी गोदी में आकर कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, और जब आप कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा लाइफ बहुत ईजी हो गई है। मैंने जितने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, वैसे स्ट्रगल मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने बच्चों के घर मजदूरों के घरों में पैदा होते हैं, पर आप जब करना शुरू होते तो सब कुछ ईजी होता है। जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरा शाम का कॉलेज होता था और दिन में मैं जॉब करता था, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता था। जब मेरी इंग्लिश खराब थी तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कभी, पर जब ध्यान देना शुरू किया तो 3-4 महीने प्रॉब्लम आई और फिर मेरे को इंग्लिश आने लग गई। मुझे उस वक्त अपना नाम लिखना भी नहीं आता था इंग्लिश में, बिकॉज आई स्टार्टेड A for apple from 6th standard। पर जब किया तो सब होने लग गया, सबने मेरी मदद की, सब लोग आ गए। आप अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई आप पे नहीं करेगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। और इसके साथ ही फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रोशर मिलेगा, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। अगर आपको इन फ्यूचर में हमसे
कोई ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी है, तो स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू पर्सनली यू कैन कम इन आवर इंस्टीट्यूट एंड वी कुड हेल्प यू व्हाटएवर हेल्प यू कैन कम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप अपने पास इसको संभाल के रख सकते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये ब्रोशर आपके जरूर काम आएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। थैंक यू। Now, I would like to request Director Sir Shri K.M. Dixit to present a memento of candidates who are chief. Then I'd like to request Director Teacher Sir to post a vote of thanks. प्यारे बच्चों, आज के समारोह के मुख्य अतिथि शर्मा जी, अध्यापक बंधु और बहुत दूर दूर से आए हुए इन छात्र छात्राओं के अभिभावकगण, आज मैं हर्ष है कि इस शिक्षा सत्र 2013-14 के प्रारंभ में हमें शर्मा जी जैसी विभूति से मिलने, उनके विचार सुनने और उन्होंने जो कुछ कहा, जिस वे में हम छात्रों का प्रोत्साहन किया और ये बताया कि हम सब में जीनियसनेस है, हम सभी जीनियस बन सकते हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हमारे अध्यापक बंधु उनकी बताई हुई तरीके, उनकी बताई हुई सोच को आगे बढ़ाएंगे और इन सभी बच्चों को, मेजॉरिटी ऑफ देम, निश्चित रूप से अपना कोर्स पूर्ण करने के बाद अपना जब वो प्रोफेशनल लाइफ में पदार्पण करेंगे तो निश्चित रूप से जीनियस होंगे। हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से काफी समय निकालकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन किया। साथ ही हम अपने साथी डायरेक्टर्स कल्याण जी, यादव जी, मैडम, इन सभी के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के पहले दिन उन्होंने छात्रों को अपने अपने विचारों से अवगत कराया। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे छात्र, जो डायरेक्टर मैडम ने उन्हें संस्था के नियम बताए, उनका पूर्णतः पालन करेंगे और उनका पूर्णतः पालन करते हुए अपनी अपने पाठ्यक्रमों में पूर्ण अनुशासन से रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे कि कोर्स पूर्ण करने के उपरांत जब वो प्रोफेशनल लाइफ में पदार्पण करें तो उन्हें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम न हो। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for your work. We conclude here with this orientation program. Thank you all the dignitaries, faculty members and कॉन्फिडेंस बैठिए